welcome to the next video of similar triangles. In today's video, we will continue with the same exercise, that is exercise 6.2, but we will do some HORTS question, that means higher order thinking skill question, which is from question number 7 till 10. Let's talk about the first question 7. Seventh question is using theorem 6.1, that is 6.1 is BPT children. Prove that the line drawn parallel through one side, let me draw the figure for you. This is a triangle and there is a line which is drawn parallel. Let me name it as ABC and this as D and E. Now let's read the question. Using theorem 6.1, prove that a line drawn parallel line drawn through the midpoint of one side of the triangle. So what is given to us that there is any one midpoint. So can I take D is the midpoint? Or you can also take E is the midpoint, whatever, आपको जो ठीक लगे. So D is the midpoint and जो line है वो prove that the line drawn through the midpoint of one side of the triangle parallel to the another side. मतलब ये भी given है कि DE parallel है BC के और हमें prove क्या करना है कि वो दूसरी जो साइड है थर्ड साइड है उसे भी बाइसेक्ट करती है. यानी कि मुझे ये प्रूव करना है कि E इज मिड पॉइंट ऑफ AC. यानी कि बेसिकली मुझे क्या प्रूव करना है, AE इज इक्वल टू EC प्रूव करना है. एंड जब मुझे D इज द मिड पॉइंट गिवन है तो इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा, मतलब D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि AD जो है वो DB के इक्वल है. और अब चेक करते हैं प्रूफ. वेरी वेरी सिंपल प्रूफ चिल्ड्रन. चेक करो, DE पैरेलल है BC के. सो कैन आई से इन ट्राइंगल ABC अगर मैं BPT लगाऊं तो मेरे बाकी दोनों साइड्स रेशियो में आ जाएंगे. यानी कि AD बाय DB या BD इज इक्वल टू AE बाय CE. राइट चिल्ड्रन. अब एज हमें चेक करो गिवन क्या था, हमें ये भी गिवन था कि AD और DB इक्वल है. तो इसमें AD और BD की जगह इक्वल मतलब दोनों की जगह BD की जगह मैं AD पुट कर देती हूँ. सो AD अपॉन AD इज इक्वल टू AE अपॉन CE. तो ये और ये कैंसिल हो गया. राइट, AD कैंसिल हो गया, ये गिवन था बेटा. राइट, तो मेरे पास क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके AE इज इक्वल टू CE. That means can I say C is the midpoint, right? Of AC. Hence proved. That was question number 7 for you. Let's check out question number 8 जो इसका थोड़ा सा इनवर्स की तरह है. कैसे देखते हैं. अगेन एक ट्राइंगल है और हमें क्या गिवन है, दो साइड्स गिवन है. चेक करो. Okay, let me just redo it. All right. ट्राइंगल की मार्किंग करते हैं. सपोज दिस इज A, दिस पॉइंट, and this point is B, this is C, this is D, and this is E. Now let's see what is given to us. Using theorem 6.2, 6.2 क्या था, converse of BPT. Prove that the line through the midpoints of any two sides of a triangle, मतलब दोनों midpoint given है. D is the midpoint of AB. तो इसका मैथमेटिकल प्रूफ क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, AD is equal to DB. एंड ये भी गिवन है कि E is the midpoint of AC. That means AE is equal to EC भी गिवन है. अब हमें प्रूफ क्या करना है. Prove that the line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. मतलब मुझे in short ये प्रूफ करना है DE parallel है BC के. तो चेक करो. अगर प्रूफ, अगेन प्रूफ बहुत बहुत सिंपल है. अगर AD इज इक्वल टू DB है बेटा, ये मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लूँ, और AE इज इक्वल टू EC है, इसे मैं सेकेंड इक्वेशन ले लूँ और मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ. 1 डिवाइडेड बाई 2. तो चेक करो क्या आएगा. AD अपॉन AE इज इक्वल टू DB अपॉन EC. और इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके अगर हम लिख दें
तो AD अपॉन ये चीज़ नीचे चली जाएगी, DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो चेक करो मैंने क्या किया है, ये चीज़ इधर लिख दी और ये चीज़ इधर करी है। अब चेक करो, अगर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC है, तो कैन आई से आफ्टर दिस, कैन आई से जस्ट वन पॉइंट, यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT, when the sides are in ratio, when two sides are in ratio, then it is parallel to the third side. So can I say DE is parallel to BC? Hence it shows that we have proved question number 8 also, and we have also used theorem 6.2 क्योंकि converse of BPT use किया और इस वाले में हमने BPT use किया था. So that is question number 7 and 8 for you. Let's talk about question number 9. Question number 9 क्या कहता है? ओके पहले एक ट्रेपीजियम बनाते हैं. एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम में क्या होता है, पेयर ऑफ साइड्स जो है वो पैरेलल होती हैं और एक पेयर जो है वो नॉन पैरेलल होता है, दैट इज अ ट्रेपीजियम. सो A, B, C एंड D इज अ ट्रेपीजियम. अब उसने आगे क्या बोला है, गिवन लिखते हैं, क्योंकि ABCD ट्रेपीजियम बोला है तो कैन आई से AB इज पैरेलल टू DC. सो ये आपने इन्होंने दिया हुआ है, and its diagonal intersect at O. So AC and BD intersect at O. वो भी बना देते हैं, AC and BD intersect at O. ये हो गया हमारा फिगर. हमें प्रूफ क्या करना है, शो दैट प्रूफ AO अपॉन BO इज इक्वल टू OC अपॉन DO. ये प्रूफ करना है, AO अपॉन BO इज इक्वल टू OC अपॉन DO. सो चेक करिए, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं. लेट मी जस्ट टेक अ डिफरेंट कलर. आई हैव ड्रॉन अ कंस्ट्रक्शन. कैसे, OE को पैरेलल बना दिया मैंने AB के. अब अगर OE AB के पैरेलल है तो चेक करिए, प्रूफ अगेन बहुत सिंपल है. In triangle ACB, OE is parallel to AB. So can I say AO upon OC is equal to BE upon EC, children? Again using BPT. ये पहली इक्वेशन आ गई, राइट? AO upon OC. अब मुझे ये वाली साइड, अगर मुझे ऑब्वियसली AO और OC आ चुकी है, अब मुझे BO और DO लेना है, तो मतलब मुझे ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा. अब चेक करिए, OE पैरेलल थी AB के एंड AB बेटा पैरेलल है CD के, क्योंकि ट्रेपीजियम है. तो कैन आई से दिस implies OE is also parallel to CD. Two sides parallel to the same side are parallel to each other, children, right? So अब मैं ट्राइंगल ले लूंगी. इन ट्राइंगल कौन सा ले लेंगे, BDC. So can I say BO upon OD is equal to BE upon EC, again using PPT. This is second. Now equating 1 and 2, तो क्या आएगा, इक्वेट करके आ जाएगा AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD. अगेन थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, AO अपॉन BO इज इक्वल टू OC अपॉन OD. हेंस प्रूव्ड. यही चाहिए था हमें, राइट? ओके, इसमें कंस्ट्रक्शन कैसे पता चलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें दिख ही रहा था कि किसी भी ट्राइंगल में साइड पैरेलल नहीं थी और हमें रेशियो लेना था, तो दैट मीन्स BPT लगेगा ही लगेगा. दैट इज व्हाई आई हैड टू डू अ कंस्ट्रक्शन, राइट चिल्ड्रन? दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 फॉर यू. अगेन अ हॉट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. अगेन द डायगोनल. ओके, अब उल्टा हो गया है थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑपोजिट. अब हमें शो करना है कि वो ट्रेपीजियम है.
अगेन बनेगा तो ट्रेपीजियम, लेकिन हमें वो ट्रेपीजियम प्रूव करना होगा। तो चेक करते हैं कैसे प्रूव होगा। अगेन ये ए है, ये बी है, ये सी है और डी है। सो लेट्स सी व्हाट इज गिवन। गिवन है कि ए बी सी डी क्वाड्रिलैटरल है, कोई भी, राइट, क्वाड्रिलैटरल है, जिसमें हमें गिवन है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। तो पहले तो मैं आपको O दिखा देती हूँ। अगेन उसमें वो पॉइंट है जहाँ डायगोनल जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये O हो गया, राइट, ये तो गिवन है। अब अगेन इसमें टू प्रूफ क्या है, ABCD इज अ ट्रेपीजियम। सो किसी भी चीज़ को ट्रेपीजियम प्रूव करने के लिए मुझे साइड्स को पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा, तभी वो आएगा। अगेन इसमें भी मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा बेटा। अगर मैं कंस्ट्रक्शन करूं, अगेन लेट मी ड्रॉ साइड पैरेलल टू ओनली वन साइड, क्योंकि दूसरी साइड पैरेलल नहीं है तो मैं वो नहीं ले सकती, तो मैं ओ, इसको मैं ओ ही मान लेती हूँ, राइट। तो कंस्ट्रक्शन ओ ई पैरेलल टू ए बी मैंने ड्रॉ कर दी। अब हम करते हैं प्रूफ। अब आप चेक करो, जैसे ही मैंने कंस्ट्रक्शन कर दी तो मुझे ट्राइंगल दिख गया। इन ट्राइंगल ABC OE is parallel to AB children, that is using construction, तो हम साइज रेशियो में लेके AO अपॉन OC is equal to BE अपॉन EC, राइट, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। कहाँ से आई, BPT से। अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे, लेकिन हम ट्राइंगल कौन सा लेंगे अब हम जो ट्राइंगल कंसिडर करेंगे ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट चिल्ड्रन। तो अब हमें ट्राइंगल जो कंसिडर करना है वो कौन सा करना है, अगेन जिसमें ये साइड और ये साइड आए। तो एक ये वाला कर लिया है, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, चेक कर लीजिए। इन ट्राइंगल, ओके, अब हमें ट्राइंगल बाद में, पहले हम और देखते हैं। इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर सकती हूँ। ओके, हाउ कैन आई गेट इट एज, चेक करो, अगर मैं BE लिखूंगी, BE बाय CD मेरे पास आ गया, तो हाउ कैन आई गेट, इफ आई वांट यू टू रीअरेंज, तो ये तो अभी फिलहाल तो नहीं हो पाएगा, तो फिलहाल मेरे पास ये आया है। तो कैन आई से इन, इफ आई चेक द फिगर, हमें गिवन क्या क्या था, AO अपॉन BO इक्वल था CO अपॉन DO के, राइट। सो इसको मैं, ये मेरे पास गिवन थी स्टेटमेंट, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज इस फॉर्म में करूँ, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ। सो AO अपॉन CO इज इक्वल टू, चेक करो, BO अपॉन DO कर सकते हैं बेटा, राइट। मैंने क्या किया, इसको इस साइड, इसको इस साइड भेज दिया। इसको मैं सेकेंड इक्वेशन ले लेती हूँ। अब अगर मैं इक्वेट करूँ, इक्वेटिंग 1 and 2, तो चेक करिए मेरे पास क्या आएगा, दिखाती हूँ आपको। ये साइड और ये साइड ऑलरेडी इक्वल है, सो कैन आई से इक्वेटिंग से मेरे पास BE अपॉन EC इज इक्वल टू BO अपॉन DO आ जाएगा। BE अपॉन EC इज इक्वल टू BO अपॉन DO आ जाएगा। सो कैन आई से दिस मीन्स OE is parallel to CD, कहाँ से, यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT। अगर साइड्स रेशियो में होती हैं ट्राइंगल की, कौन सा ट्राइंगल कंसिडर किया है मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। DE और CE इसका पार्ट, और BO और DO इसका पार्ट, यानी कि मैंने ट्राइंगल कौन सा कंसिडर किया, अब आपको दिख गया होगा, ग्रीन वाला जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो ट्राइंगल यूज किया है। सो दिस इज, लेट मी राइट डाउन ऑल्सो, इन ट्राइंगल BCD, ये आ गया, राइट। अब आप चेक करिए, एज
OE पैरेलल था AB के, ये हमने कंस्ट्रक्शन से लिया था, ऑल्सो लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन से था, OECD के भी पैरेलल है. सो कैन आई से if this is my third equation and this is my fourth equation, can I say from 3 and 4 I will get CD is parallel to AB? That means अगर CD और AB आपस में parallel आ गए, can I say ABCD is a trapezium? Right? Hence proved. So this is how I want you to do this question number 10. So this was also a HOTS question. तो आज हमने सारे बेसिक क्वेश्चन को छोड़ के सारे HOTS क्वेश्चन किए हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी whatever is the doubt in the